See this question number 401. In this question number 401, ये क्वेश्चन कहता है कि एक जनरेटर की रेटिंग है 250 MVA, इनर्शिया कांस्टेंट है 6 मेगाजूल पर MVA। तो इसका इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगा नए बेस पे? नया बेस है 100 MVA। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी is always equal to the rating of the machine into inertia constant. H is the inertia constant and S is the rating of the machine. 250 MVA की रेटिंग पर इनर्शिया कांस्टेंट है 6 मेगाजूल पर MVA। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 250 इंटू 6। अब ये कहता है कि नए रेटिंग पे अगर हम 250 को 100 में चेंज कर दें, यानी 250 MVA की जगह अगर हम 100 MVA की रेटिंग यूज़ करें, तो इनर्शिया कांस्टेंट कितना रखना पड़ेगा? तो इनर्शिया कांस्टेंट हमें उतना रखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। पहले काइनेटिक एनर्जी 250 इंटू 6 थी, 250 इंटू 6 मेगाजूल थी। तो बाद में भी हमें एक ऐसे 100 को एक ऐसे इनर्शिया कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जितनी की पहले थी। ये पहले की काइनेटिक एनर्जी है। तो H की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। 250 इंटू 6 बाई 100 यू विल गेट 15 मेगाजूल पर MVA। Now see this question number 402. In this question number 402, it is saying that for 800 megajoule stored energy in the rotor at synchronous speed, what is the inertia constant H for a 50 Hz full 4-pole turbo generator rated 100 MVA 11 kV? अब ये कहता है कि अगर मशीन में हमें ये पता है कि एनर्जी हमेशा रोटर में ही स्टोर रहती है। Stored energy in the rotor at synchronous speed is 800 megajoule. So the kinetic energy of the machine is given as 800 megajoule. और कितनी रेटिंग पे है? We know that kinetic energy equals to rating. Rating is always given in MVA, and this is inertia constant H. H, the unit of H is megajoule per MVA. तो ये कहता है कि अगर रेटिंग है 100 MVA, तो इनर्शिया कांस्टेंट H की वैल्यू कितनी हो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटर इज 800 मेगाजूल। इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H, दैट इज 800 अपॉन 100, सो इट विल बी 8 मेगाजूल पर MVA। आसान सी बात है, आपको केवल इतना याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू रेटिंग इनटू इनर्शिया कांस्टेंट। The kinetic energy is given to you, the rating is given to you. The kinetic energy is this and the rating is this, and you can find out the inertia constant, that is H equals to 8, option D, 8 megajoule per MVA. Now see the next question, question number 405. In this question there are two generating units, they are operating in parallel within same power plant. Unit number 1, इसकी रेटिंग है 500 MVA और बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इनर्शिया कांस्टेंट है 5 मेगाजूल पर MVA। दूसरी यूनिट है 200 MVA, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। पावर फैक्टर, कितने किलो वोल्ट का जनरेटर है, कितनी स्पीड से रन कर रहा है, और इनर्शिया कांस्टेंट दिया हुआ है 5 मेगाजूल पर MVA। अब ये पूछता क्या है? अब ये पूछता है कि you have to find out the equivalent inertia constant H. Remember, we have to find out the equivalent inertia constant H in megajoule per MVA on 100 MVA base. तो 100 MVA base पर हमें नया inertia constant चाहिए, है ना? equivalent inertia constant चाहिए 100 MVA base पर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 405. In this question number 405, see this question. There is unit number 1,
the kinetic energy stored in unit number 1 is, always remember the kinetic energy equals to rating of the machine into inertia constant. So what is the rating? 500, and the inertia constant is 5. So 500 into 5 is the 500 into 5 is the kinetic energy stored in the unit number 1. So easily we can find out the kinetic energy stored in unit number 2. So in unit number 2, the rating is 200 MVA and inertia constant is 5. So kinetic energy stored in unit number 2 is 200 into 5. So it is 200 into 5. So this is the total kinetic energy stored. Total kinetic energy stored in unit number 1 plus unit number 2. तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिलाकर अगर हम एक ऐसा जनरेटर बनाएं, ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर हम एक यूनिट बनाना चाहते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट निकालना है 100 MVA बेस पर. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास दो जनरेटर्स हैं. ये पहला जनरेटर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है 500 इंटू 5. ये हमारे पास दूसरा जनरेटर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है 200 इंटू 5. दिस इज़ दी काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन जनरेटर नंबर 1, 500 इंटू 5. दिस इज़ द वैल्यू. और सेकेंड यूनिट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 200 इंटू 5. अगर इन दोनों यूनिट्स को हम मिलाकर एक कंबाइंड यूनिट की तरह चलाएं, इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर ये हमारा एक सिंगल जनरेटर है, तो इसका इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगा 100 MVA बेस पर. 100 MVA बेस पर. तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी? 100 इंटू H. तो इन दोनों की मिलाकर काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए. इन दोनों जनरेटर्स की काइनेटिक एनर्जी मिलाकर इस इक्विवेलेंट जनरेटर की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए. यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में. इन दोनों जनरेटर्स की मिलाकर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही एक सिंगल जनरेटर की होनी चाहिए, वही एक इक्विवेलेंट जनरेटर की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. आई रिपीट, इन दोनों जनरेटर्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही एनर्जी इस इक्विवेलेंट जनरेटर के पास होनी चाहिए. तो इस इक्विवेलेंट जनरेटर के पास कितनी एनर्जी है? 100 इंटू H. So this is 100 into H. So we can solve this equation. It will be you can solve it. So it will be 2. It is 5. So 25 plus 10 equals to 35. So H equals to 35 megajoule per MVA. So you can see easily the option for 405 is 8. Option for 405 is D, and here you can see D is 35 megajoule per MVA. Okay, see this question number. This is the question 405. The answer is D.